Okay, once again, very good morning, students. Okay, so today we are going to start with current electricity, but no, we have decided to let's take few more problems and from capacitors and do our A3 syllabus, means our test paper, a little discussion more about few questions that were remaining from yesterday's lecture, and then we will go to introducing the current electricity. Okay, yeah. So we'll take first problems from some PM Sharma book that few students recommended yesterday in doubt session. Okay, so those questions we will take and then we will begin for our A3 papers discussion. Okay, yeah. So let's see the first question. Okay, so here we have a capacitor network, and then yes, okay, we have a plus 6 volts here, then we have plus 2 volts, then we have a 20 microfarad capacitors, and then we have C1 equals 60 microfarad capacitor, and we have C3 equals 30 microfarad capacitor, and then we have a plus 3 volts. Yeah, and this is the point O. This is the point O. और क्या पूछा है उन्होंने? 3 अनचार्ज कैपेसिटर्स आर प्लेस्ड. ये अनचार्ज है, ठीक है. हाँ, फाइंड द पोटेंशियल एट O. फाइंड द पोटेंशियल एट O. VO निकालना है आपको. VO आपको निकालना है. तो आप इसके क्या करना है आपको? So when you have to find VO, you can use in such type of questions KVL and KCL, that is Kirchhoff's laws. Kirchhoff's law आप यूज करोगे. हमने सीखा है Kirchhoff's law यूज करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो we assume that there is certain VO potential here. VO potential है यहाँ. ओके, हाँ. और VO potential होता है तो आपको क्या मालूम है? Q equals to CV. Q equals to CV, you know that already. So just put Q equals to CV. Q equals to CV आप पुट करो और आपको क्या करना है? Q equals to CV पुट करके यहाँ पे KCL भी लगाना है. Kirchhoff's current law, Kirchhoff's charge law. वो क्या था? Net charge in an isolated system is always equals to 0. Net charge in an isolated system always equals to 0. तो ये जो सिस्टम है, ये पार्ट, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना? ये है आइसोलेटेड सिस्टम. यहाँ पे चार्ज क्या होगा? 0 होगा. यहाँ पे चार्ज क्या होगा? 0 होगा. तो यहाँ पे चार्ज अगर 0 है तो वी कैन राइट इट दैट. यहाँ पे लेट अस गिव द नेम्स. यहाँ पे चार्जेस को नाम रखते हैं. क्या नाम रखते हैं? Q1, Q2 और Q3 रखते हैं. चलेगा? या सो लेट अस पुट द नेम्स. Q1, Q2 एंड Q3. इसको बोलेंगे Q1, इसको बोलेंगे Q2 और इसको बोलेंगे Q3. ठीक है? यस, जस्ट पुटिंग द नेम्स. C1 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू दी है, C3 की वैल्यू दी है. तो आपको चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज 0 ऐसे पता है, तो आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 equals 0. है ना? Yes students? Yes. Voice quality and just reply me if the voice quality and the board quality is clear or not. Yeah. Okay. Yeah. If you add the charges equals to 0, then you have understood what we have to do. Okay. Also Q equals to CV. Also Q equals to CV भी है. Okay. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कि तीनों के वैल्यूज हम निकालेंगे. तो what is V? V is the potential difference. पर ये 6 वोल्ट सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. तो आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि ये प्लस ये V पोटेंशियल एट लेटेस्ट एक वेरी वेरी हाई पोटेंशियल पे है. इट इज़ अ वेरी वेरी हाई पोटेंशियल. ओके, सो क्योंकि कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा आपको. तो यहाँ पे ये प्लस निकालो, यहाँ पे भी प्लस निकालो, यहाँ पे भी प्लस निकालो. ठीक है? सो दिस बिकम्स माइनस, दिस बिकम्स माइनस, दिस बिकम्स माइनस. हाँ, so all these charges are positive. हमने consider करिए all these charges are positive और equal to 0 consider किया. This will not be like that, but we will assume certain arbitrary status to it. मतलब उसको positive मान के चलेंगे और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अगर ये नेगेटिव आता है तो आप उसको बाद में आंसर चेंज कर सकते हैं. पर फिलहाल लेट अस कंसीडर दैट VO इज एट वेरी वेरी हाई पोटेंशियल. ये क्यों ऐसे कंसीडर किया? क्योंकि आपको कंसीडर करना है, आपको यहाँ पे Q1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? C इंटू V. इसका कैपेसिटेंस कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? इट इज गिवन टू यू. कितना है कैपेसिटेंस का वैल्यू? इट इज रिटन देयर, है ना? या ये है 60 माइक्रोफैराड. सो वी हैव C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल्स 0. है ना? यस. अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे. देखो C1 की वैल्यू कितनी है? 60 माइक्रोफैराड्स, है ना? 60 माइक्रोफैराड्स. एंड व्हाट अबाउट वोल्टेज V1? V1 वोल्टेज कहाँ से देखना है आपको? V1 चार्ज, ये टॉकिंग अबाउट चार्ज Q1 प्लस से यहाँ पे है ना? तो इसको हम क्या करेंगे? VO माइनस 6. क्या बोलेंगे? VO माइनस 6.
कंसिडर किया आपने, चार्ज देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया। तो यहाँ से यहाँ चार्ज कब जाएगा, जब यहाँ से यहाँ वोल्टेज जाएगा। सो वोल्टेज वी आर कंसिडर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हैज इंड्यूस्ड चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। सो यहाँ का चार्ज होगा कैपेसिटेंस इनटू यहाँ का वोल्टेज, इधर से इधर का वोल्टेज का डिफरेंस। ओके, प्लस C2 के वैल्यू कितना है 20 माइक्रोफैराड्स है ना, यस 20 माइक्रोफैराड्स। एंड व्हाट अबाउट V2 इसका वोल्टेज क्या होगा VO माइनस 2, दैट इज VO माइनस 2 प्लस C3 क्या है 30 माइक्रोफैराड्स है ना, 30 माइक्रोफैराड्स इनटू व्हाट अबाउट द पोटेंशियल है VO माइनस 3। ओके, VO माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से। अभी इसको सॉल्व करो टेक्निकली एंड यू विल गेट द आंसर। इसको हम सॉल्व करेंगे 60 इंटू VO माइनस 6 इज 360 प्लस 20 VO माइनस 40 प्लस 30 VO माइनस 90 इक्वल्स 0। अभी टर्म्स ऐड करो सभी, कितने होते हैं 50 प्लस 60 110 VO। ऑन द अपोजिट साइड वी हैव minus 70, yes, and we have 440, so we have 440 here, therefore VO equals 4, 110 4s are right, yes, it's correct or not, let us see once again, 80 plus yeah 6 90 plus 20 110 वर करेक्ट है ना। हाँ, आता इथे बघा काय आहे 360 प्लस माइनस 400 आणि माइनस 490 है ना, माइनस 490 कडून प्लस 490 म्हणतात बरोबर। हां, तर हे किती झालं 49 अपॉन 11 वोल्ट्स। 49 अपॉन 11 वोल्ट्स इज द आन्सर एट VO। क्लियर आहे, 49 अपॉन 11 वोल्ट्स इज द आन्सर एट VO। क्लियर आहे तुम्हाला स्टुडंट्स, हा आहे तुमचा पोटेन्शियल ॲट O पॉईंट। ठीक आहे, हे झालं KVL आणि KCL ने आपण सोडवलं। ठीक आहे, KVL कसं अप्लाय केलं फक्त फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ सर्किट्स, KVL कुठे अप्लाय केलं फक्त फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ सर्किट, KVL कुठे अप्लाय केलं फक्त फ्रॉम फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ सर्किट्स। ठीक आहे, आणि KCL याचा अर्थ काय आहे चार्ज कंजर्वेशन है ना, इन एन आयसोलेटेड सिस्टम इज 0। दोघांना वापरून आपण आन्सर काढलं। गुड क्वेश्चन, या यू लाइक इट, व्हेरी गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, so if we have one more problem, that is a circuit is shown and then you have a circuit is given and then you have a capacitor here and a battery च्या इकडे निगेटिव्ह आहे, इकडे पॉझिटिव्ह आहे आणि परत इकडे पुढे गेल्यावर तुमचा परत एक कॅपॅसिटर आहे। ओके, देन हां, आणि इथे 5 वोल्ट्स आहे। ओके, आणि डन कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू C1 1 मायक्रोफॅरड आहे, C2 ची व्हॅल्यू दिली आहे किती आहे 2 मायक्रोफॅरड्स आणि मग काय व्होल्टेजची व्हॅल्यू आहे 10 वोल्ट्स। ठीक आहे, डन। आता ह्या तुमच्या दिलेल्या व्हॅल्यूज आहेत आणि मग क्वेश्चन विचारलाय फाइंड द चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर। फाइंड Q1 अँड Q2। ओके, इथला चार्ज असणार आहे Q1 आणि इथला चार्ज असणार आहे Q2। ठीक आहे, दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन आहे, कळलं सगळ्यांना? ओके, आता काय करणार तुम्ही, use KVL law. See, we have taken these problems on your request yesterday in doubt session that you had. Let's take few more problems from VM Sharma, इसलिए मैंने ये लिया है। Okay, otherwise we are solving current electricity, हाँ, yes, okay, हाँ, okay, yes, so let us see more। यहाँ पे प्लस Q देते हैं। अभी यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल तो ये निगेटिव हो जाएगा, सिंपल, ये पॉजिटिव तो ये प्लस 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 हो जाएगा है ना, यस। और यहाँ पे सिर्फ प्लस प्लस फिर भी लिखा लो, अब इसको +1 +1 +1, यहाँ पे ये हो जाएगा निगेटिव, माइनस 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 है ना, यस।
अभी आपको क्या करना है, वी हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी को हमें जाना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी को अगर हमको जाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वी यूज केवीएल, केवीएल मतलब वोल्टेज लॉ, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो वी ए के बारे में, वी ए आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लेट अस अज्यूम दैट वी ए इज एट हायर पोटेंशियल। सो वी ए, पहले आप हायर पोटेंशियल पे हो तो आप क्या करोगे, वी ए लेट अस कंसीडर वी ए का पोटेंशियल ले लिया, प्लस टू माइनस क्या होता है, हम डिक्रीज होते हैं, प्लस टू माइनस क्या होते हैं, हम कम जाते हैं, कम पोटेंशियल नहीं होते, तो माइनस वी सी वन, मतलब कैपेसिटर सी वन पे जो वोल्टेज है वो, माइनस टू प्लस क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है, तो प्लस 10 वोल्ट्स, प्लस टू माइनस क्या होता है, वोल्टेज कम होता है, यानी माइनस कितना, वी सी टू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हम पहुंच गए फिर वी बी पे पहुंच गए, है ना, वी बी पे पहुंच गए हम, क्योंकि सब मिला के हम फाइनली कहाँ पहुंच गए, वी बी पे आ गए। तो हमको ये सॉल्व करना है, तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू, यही सब वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव बन जाएंगे, दैट इज वी सी वन, इसके ऊपर कैपेसिटर कितना ड्रॉप होता है, सो वी हैव फार्मूला Q इक्वल्स टू सी वी, या V इक्वल्स टू Q अपॉन कैपेसिटेंस, द चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस will tell us the voltage that is present there. Yes. So what is VC1? VC1 मतलब इसके ऊपर का चार्ज, that is Q upon C. यहाँ पे चार्ज पता नहीं है तो आप क्या लिखोगे, Q1, और कैपेसिटेंस किसका इतना, 1 फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड, ओके, यस। ये माइनस भी यहाँ पे प्लस हो गया, VC2 इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर चार्ज कितना था, Q2 था, तो Q2 अपन इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रो फैरेड, हो गया आपका सॉल्व, है ना। यहाँ पे आप बैलेंस कर लो, मल्टीप्लाई बाय टू कर लो, 2Q1 plus Q2 upon 2, okay, 2Q1 plus Q2 upon 2 will be equals to VA minus VB, और VA minus VB आपको दिया गया है, कितना है वो, VA minus VB is 5 volts, है ना, so here you can write 5 volts will be equals to 2Q1 plus Q2 upon 2 micro farad, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये माइक्रो का सिंबल माइक्रो कूलम्स हो जाएगा, फैरेड इनटू वोल्ट इज कूलम, 10 माइक्रो कूलम्स इज 2Q1 plus Q2, है ना, ये होगा आपका वैल्यूज, ओके, यस। तो आपको ये इक्वेशन पता चल गया, यस। अभी आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन राइट, आपको कुछ मालूम है, और एक चीज, Q1 और Q2 का रिलेशनशिप पता है क्या, Q1 और Q2 का, यस। तो व्हाट कैन यू थिंक अबाउट Q1 एंड Q2, यस, yes, very good. Charge remains same in series, charges remain same in series, series में चार्ज क्या होता है, हमेशा सेम रहता है, so Q1 will be equals to Q2, therefore Q1 equals to Q2 लिख सकेंगे, Q1 will be equals to Q2, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, so 2Q1 plus Q2 that is 3Q, that is what, 3Q, है ना, yes, so we can write 3Q equals to 10 microcoulombs, है ना, yes, so just by solving that you will get the answer, yeah, so ये है VA minus VB plus 10 volts, है ना, और ये plus 10 volts यहाँ पे रह गया, so we can write here VA minus VB plus 10 volts यहाँ पे बच गए, तो वो लिखो 10 plus 10 volts, यहाँ पे है plus 10, तो ये 15 हुआ, 15 इंटू 2 क्या हुआ, 30, यस, ये 2 इंटू 15 वोल्ट्स हमने यहाँ पे, ये 10 बच गया था हमारा रह गया था, वो 10 हमने यहाँ पे ले लिया, सो 2 इंटू 15 इज 30, ओके, एंड 30 माइक्रोकूलम्स विल बी इक्वल्स टू 2Q1 प्लस Q2, इसका मतलब कितना होता है, 3Q होता है ना, विल बी इक्वल्स टू Q कंसीडर करेंगे, तो Q मतलब कितना होगा आपका 10 माइक्रोकूलम्स, तो मतलब कितना होगा 10 माइक्रोकूलम्स, सबका आंसर आ गया, यस, दैट्स इट, वेरी गुड। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, वेरी गुड, है ना, दिस इज सेकंड प्रॉब्लम फ्रॉम BMCQ, ओके, यस, सो लेट्स टेक फ्यू मोर, ओके,
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन लेंगे। यस, सो वी हैव अ नेटवर्क। अब हम थोड़ा फास्ट जाएंगे और कैलकुलेशन का पार्ट अब आप करोगे, चलेगा? यस, यू आर स्टूडेंट्स, सो यू कैन डू मोर कैलकुलेशन। सो लेट अस सी, आपको एक की दिया गया है ऐसे, ओके या यहाँ पे है एक कैपेसिटर, यस, एंड दे आई हैव गिवन हियर कैपेसिटेंस है सी, वोल्टेज है वी। यहाँ पे कैपेसिटेंस है 2C और वोल्टेज है 2V। यहाँ पे कैपेसिटेंस है 3C और वोल्टेज है 3V। यहाँ पे कैपेसिटेंस है 4C और वोल्टेज है 4V। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज plus and this is minus. This is the part of question. This is the part of question. Okay, they are given these values and find the voltage on all the condensers in equilibrium. Okay, this okay, our charge to voltage. Okay, okay, this is before closing, before closing. Okay, find what voltage on all the capacitors. Find the voltage on all the capacitors in equilibrium state. Okay, when they attain equilibrium state मतलब क्या होता है? देखो, ये वोल्टेज, इनके ऊपर कुछ ना कुछ वो वोल्टेज, हाँ, ओके, यस, सो इज इट गिवन लाइक दिस क्वेश्चन? यस, तो हाँ, ये इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है, मतलब इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 है, इसकी C4C है, इसकी 3C है और इसकी 2C है। ओके, एंड व्हाट इज दे हैव गिवन? दे आर ऑलरेडी चार्ज्ड टू गिवन वोल्टेजेस, मतलब वो क्या हुआ है, वो कैपेसिटर को ऑलरेडी चार्ज करके यहाँ पे रखा है, इसको भी चार्ज करके रखा है, और इन चारों को हमको सीरीज में कनेक्ट करना है। क्या करना है? सीरीज में कनेक्ट करना है, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आपको ये कीज क्लोज करने, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होना चलेगा, चालू हो जाएगा, क्योंकि सभी इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, ये ज्यादा वोल्टेज का, ये कम है, तो पूरा इक्विलिब्रियम में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार वो सर्किट ऑन हो गया तो फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड होगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट इज दैट स्टेट इन विच ऑल द चार्जेस आर, मतलब चार्ज पूरा डिस्चार्ज हो गया, इनका कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया और ये स्टेबल हो चुका है ना? क्या होता है आपका प्रोसेस, जब भी आप कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स को लगाते हो तो पहले वो चार्जिंग का प्रोसेस चालू होता है ना, इट स्टार्ट्स चार्जिंग अप, और फिर आप किसी चीज को लगाते हो तो वो डिस्चार्जिंग होता है। पूरा डिस्चार्जिंग होने के बाद वो क्या होता है? कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में हो जाता है ना? वो हो गया पूरा इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका ऑपोजिट स्टेट क्या है? ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं उसको, वो आप अल्टरनेटिंग करंट में ज्यादा सीखोगे, अल्टरनेटिंग करंट लेसन में, ठीक है? उसमें क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी पड़ती है। अभी आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में मतलब फाइनल स्टेट में वैल्यू निकालनी है। ओके, यस, तो अभी इसको आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली लूप लॉ यूज करोगे, यानी केवीएल यूज करोगे। ओके, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, उसको हम लूप लॉ भी बोल सकते हैं, है ना? लूप लॉ, तो आप एक राउंड द लूप मूव होना है, आपको एक मूव होना है, और फिर आपको लूप लॉ यूज करना है वहां पे, ठीक है? यस, सो व्हाट वी विल डू, अप्लाई लूप लॉ। पहले इसको हम नाम देंगे सर्किट को कुछ न कुछ, सो लेट अस गिव द नेम्स टू इट। ये आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, इसकी कीज आपने क्लोज कर दी। ओके, सो व्हेन यू क्लोज द कीज, सो व्हाट विल हैपन? द पोलैरिटी रिमेन्स सेम एट द स्टार्टिंग। Yes, so polarity remains same, and now what happens? The charge starts to flow. Charge कहाँ से? Let us assume that हमने assume किया कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज जा रहा है, क्योंकि किरचॉफ्स लूप लॉ का कंसीडर करके
तो आपको कहाँ से मूव होना है ना, सर्किट को राउंड द लूप क्या होना है, मूव होना है. सो इफ यू वांट टू मूव राउंड अ लूप, आपको राउंड अ लूप अगर मूव होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक डायरेक्शन डिसाइड करना होगा. तो ये डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया. अब ये डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इसके ऊपर चार्ज कुछ था, लेटेस्ट एक C1 पे C2 हमने नाम दिए ना इसको. यस, वी हैव गिवन इट नेम्स. ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन इट नेम्स, कुछ नाम दिए. तो हमको हमको पहले अज्यूम करना है कि इसके ऊपर जो कुछ आपका चार्ज था, इसके ऊपर लेटेस्ट एक Q1 चार्ज था. सो Q1 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, C1 V1. इसका वोल्टेज है Q2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे C और V है तो CV हो गया. ये रहा लेटेस्ट एक Q2, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, फॉर्मूला इज Q इक्वल्स CV. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस है Q2 will be equals to what students, 2C into 2V that is 4CV. यहाँ पे Q3 पे कितना चार्ज रहा होगा, 3C into 3V that is 9CV. और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, Q4 पर 4C into 4V that is 16CV, है ना. ये उसके ऊपर स्टार्टिंग पे चार्ज थे, मतलब ये बंद करने के पहले. अभी आपने कीज क्लोज कर लिए तो यहाँ से क्या होगा, एक चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो, क्योंकि अभी तो चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है ना. तो अगर क्लोज करेंगे तो ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम स्टेट में अटेन होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो जाएगा. तो लेट अस अज्यूम दैट चार्ज Q फ्लोज विद सर्टेन डायरेक्शन प्लस Q. अभी उसकी पोलैरिटी वही रहेंगी क्योंकि वो फ्लो हो रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं अटेन. इक्विलिब्रियम होने के बाद वो कुछ ना कुछ स्टेबल होगा, तब तक तो पोलैरिटी वही रहेगी ना. सो वी हैव पुट द सेम पोलैरिटीज एंड सेम प्लस Q सिंबल. हाँ, अभी क्या होगा, इसके ऊपर का चार्ज यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे यहाँ से निकल रहा है. इसका मतलब चार्ज वहाँ पे कम हो रहा है. देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है यहाँ पे, पर यहाँ से Q चार्ज वो मूव हो रहा है क्योंकि. सो व्हाट यू कैन राइट इट नाउ, द चार्ज ऑन इट इज Q1 माइनस Q, है ना. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पे Q1 ऑलरेडी उसमें चार्ज भरा हुआ था, पर ज्वाइन करने के बाद मूव होगा. और हमने एज्यूम किया क्योंकि डायरेक्शन ये है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से Q चार्ज निकल चुका है. सो वैसे ही यहाँ से कितना चार्ज निकलेगा, और यहाँ पे चार्ज कितना बचेगा इक्विलिब्रियम में, Q2 माइनस Q. इक्विलिब्रियम में यहाँ पे कितना चार्ज होगा, Q3 माइनस Q. यहाँ पे कितना होगा, Q4 माइनस Q. तो ये चार्ज यहाँ पे इतना इतना रहेगा. ठीक है, यस. तो चलो इसके ऊपर अभी वर्कआउट करेंगे. यस, ओके. हाँ, तो सभी के वैल्यूज लिखो यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ. व्हाट इज किरचॉफ्स लूप लॉ, वोल्टेज का एडिशन होता है. वोल्टेज का एडिशन मतलब क्या, व्हाट इज V इक्वल्स टू Q अपॉन C. तो यहाँ का आपको निकालना है, तो Q अपॉन C का वैल्यू निकालो सिर्फ यहाँ पे. दैट इज नथिंग बट Q1 माइनस Q अपॉन इसका कैपेसिटेंस कितना है C. ओके, या माइनस टू प्लस इंक्रीजिंग, माइनस टू प्लस फिर से इंक्रीजिंग. और इसका वोल्टेज कितना रहेगा, प्लस. इसका चार्ज कितना है, Q2 माइनस Q अपॉन इसका कैपेसिटर कितना है 2C. तो अपन लिखोगे 2C प्लस माइनस टू प्लस इंक्रीजिंग, कितना है चार्ज कितना है यहाँ पे Q3 माइनस Q. सो वी हैव Q3 माइनस Q अपन इसका कैपेसिटेंस कितना है 3, यहाँ पे 3C है ना, देखो 3C अपॉन 3C प्लस फाइनली वी हैव चार्ज ऑन दिस दैट इज Q4 माइनस 4 अपॉन व्हाट, इसका कैपेसिटेंस कितना है 4C इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो ये हुए आपके किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अगर आपको इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हो सीधा, वैल्यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट करते हो Q1 और Q2 के, Q3 के, कौन से Q1 की जगह आपको क्या लिखना है, Q1 की जगह आपको लिखना है CV. तो CV माइनस Q अपॉन C प्लस Q2 की जगह आपको लिखना है, Q2 कहाँ पे, यहाँ पे 4CV माइनस Q अपॉन 2C. Q3 की वैल्यू कितनी है 9CV प्लस 9CV माइनस Q अपॉन 3C प्लस Q4 की वैल्यू क्या है 16CV माइनस Q अपॉन 4C इक्वल्स 0. आप सभी वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लोगे. 12 एलसीएम आता है तो 12 एलसीएम करेंगे. तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12, है ना. यस, तो देखो ये कितना होगा 12CV, ये होगा 6 4 24CV, ये होगा 9 4 36CV, ये होगा प्लस 16 3 48CV, और ये माइनस 12Q माइनस 12
-6 -4 -3 q, और ये 12 से यहाँ पे आके 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके यहाँ पे। इसको आपने सॉल्व किया तो 12 प्लस 24 36 होता है, 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 8 80, 80 प्लस 4 120। सो वी हैव 120 CV इक्वल्स, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया 6 12 प्लस 24 प्लस 15 Q। तो Q की वैल्यू कितनी आती है 15 वॉट जा 120, 15 8 जा, सो 8 CV इक्वल्स टू Q। तो आपको पूछा क्या है फाइंड द वोल्टेज, तो V विल बी इक्वल्स टू व्हाट फाइंड द वोल्टेज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स। ओके, तो चार्ज तो आपको मिल गया ना 8 CV, यही माइनस करो यहाँ पे सिंपल, तो इसका वोल्टेज आपको मिल जाएगा। CV माइनस 8 CV कितना होता है -7V, तो इसके ऊपर -7V आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस। तो फर्स्ट लेट अस सी द आंसर। Q इक्वल्स टू कितना आता है हमारा 24/5 उन्होंने दिया है। लेट अस सी एनी मिस्टेक। 36 plus 36 72, 72 plus 80, 80 plus 4 120 करेक्ट है। और ये है 12 plus 36 12, so 24 plus 3 is 24 plus 3, so 12 24 plus 3 this becomes 27 है ना, ये 27 आ रहा है यहाँ पे, 27 आ रहा है। तो 120 अपॉन 27, 120 अपॉन 27 कितना आता है 127 इक्वल्स टू Q। ये कितना आ रहा है 3 9 जा और 3 40 जा है ना, 40/9 इज इट करेक्ट, 40/9 3 4 जा 3 9 जा, इज दैट एनीथिंग स्टिल इशू। Q की वैल्यू आपको पता करनी है राइट। ओके, सो लेट्स सी 36 36 72 80 120 CV करेक्ट है। 12 प्लस 24 प्लस 3 इज 27 करेक्ट है ना। So 3 9 is 27 and 3 4 is 40 upon 9 equals to CV. So Q equals 40/9 आ रहा है हमारा। Q equals to into 3 किया है हमने राइट, तो 4 into 6 तो 12 CV है, 6 4 है 24 और यहाँ पे 4 9 है 36 48 27। Okay students, their value is coming 24/5 volt, 5 CV आ रहा है उनका आंसर। तो वो कैसे आ जाएगा, हमने तो सही गलत किया, into 12 लेंगे। ट्वेल्व एलसीएम करना है ना हमें, तो 12 एलसीएम का बोले 4 3 जा 3 4 जा 2 6 जा 12 जा, तो 12 CV माइनस 12 Q करेक्ट है। हाँ ओके, सो 6 4 जा 24, अगर माइनस में नहीं तो यहाँ पे प्लस करूँगा प्लस 6 Q और यहाँ पे 4 Q प्लस 3 Q, तो ये हो गया 12 CV 4 जा 24 9 48 40 36 plus 36 60 72 80 120, it is correct 18। देखो स्टूडेंट्स,
6 और 12 और 6 कितने होते हैं 18, 18 और 4 22 होते हैं ना, 22 और 3 कितने होते हैं 25 होते हैं, और 12 प्लस ये 10 है, हाँ 22 और ये 25 आ रहे हैं, हाँ ये एडिशन 25 है, वही बोल रहे हैं ये कैसे गलत हुआ ऐसे, हाँ दिस एडिशन इज कमिंग 25 नॉट 27, इट्स अ वेरी सिली मिस्टेक. So 120 CV upon 25 will be equals to Q, और यही आंसर है. तो 5 5 जा होता है और 5 2 जा 10, 20 24/5 है ना, 5 2 जा 10 सही है ना, 5 2 जा 10, 5 4 5 8 जा ना 4 जा 20 24/5. Yes, correct. 24/5 is the correct answer. So Q is equals to what? 24/5 CV. Very silly mistake. हमने सिर्फ silly addition का mistake किया था, बाकी सब सही है. So 24/5 is the answer. 24/5 CV is the answer. अभी आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ Q वोल्टेज निकालना है ना आपको सभी का. तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, पहले ही इस पे ये फॉर्मूला में आपको पुट करना है. सो यस Q1 Q की जगह यहाँ पे 24/5 CV पुट करो, Q1 की Q2 की वैल्यूज को. Q1 की वैल्यू कितनी है CV है ना, तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, विल सी व्हाट इज द आंसर. या ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यूज, यहाँ पे पुट करोगे आप वैल्यूज. देखो अब ये पार्ट में रब कर रहा हूँ, आपको ये पार्ट समझ में आ गया. या सो नाउ आई एम रबिंग दिस पार्ट. सो जस्ट फाइंड यहाँ पे Q, यहाँ पे का वोल्टेज क्या रहेगा, Q1 माइनस Q अपॉन C. सी व्हाट इज दैट, ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. Q1 की वैल्यू कितनी है CV, तो होगा CV माइनस Q की वैल्यू कितने 24/5 CV अपॉन C. तो इसका आपने सॉल्व किया, 5 माइनस 24 था -19/5, -19/5 CV आ जाएगा है ना. दैट इज ये मॉड में आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज आपने क्या कंसिडर, वोल्टेज सिर्फ उन्होंने पूछे कि वोल्टेज पूछो, तो ये आ गया 19/5 CV. तो इसका था 19/5 CV. वैसे आपको इसका और इसका निकालना है. ओके, दैट इज जस्ट पुट द सिंपल वैल्यूज ऑन इट एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, आई विल टेल यू द वैल्यूज, यू जस्ट कंफर्म इट. ओके, यस Q2 की वैल्यू है 2/5. इसका वोल्टेज इसको यहाँ पे पुट करोगे आप Q2 की जगह. दिस इज V1. ओके स्टूडेंट्स, ये V1 है, इसके ऊपर का वोल्टेज है ना, हमने लूप लॉ यूज किया था. ये V2 है ना, ये V3 है और ये V4 है. तो ये चारों वोल्टेज के वैल्यूज आपको निकालने. ओके, you solve it on yourself so that we can take a next question. Yeah. Okay, students, let's go to the next one. There is one big question coming here. Yes, क्वेश्चन देखते क्या करना है. यस, तो हम हमारे पास एक सर्किट ऐसा बड़ा, ओके यस, और यहाँ पे है पोटेंशियल प्लस A और यहाँ पे -B है ना. यस, और वैल्यूज दिए गए हैं C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3. इसका वैल्यूज है, देखो वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ फटाफट. फर्स्ट C1 C2 C3 C4 C5 C6 सभी के वैल्यूज है C1, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है. ओके हाँ, फाइंड क्या बोला उन्होंने, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन CV. फाइंड CAB बाय बोथ मेथड्स, बाय योर लूप इक्वेशंस और बाय किरचॉफ्स KVL एंड KCL. जब मैं KCL बोलूंगा यानी किरचॉफ्स, वो एक्चुअली करंट लॉ होता है, बट किरचॉफ्स करंट लॉ हम जब इंस्टेड ऑफ सेइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, यू अंडरस्टैंड इट एज व्हाट योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी हम जो आइसोलेटेड सिस्टम में जो यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो आप यूज करो, कंसिडर करो. ओके यस, तो CAB, find CAB by KVL KCL and also find CAB by Wheatstone's network.
व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, आपको व्हीटस्टोन्स नेटवर्क अप्लाई करके भी आपको ये आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का बहुत इजीली आंसर निकल सकता है, क्योंकि केवीएल केसीएल आप यूज करोगे तो आपको लूप्स बनाने पड़ेंगे, है ना, लूप्स चेक करनी पड़ेगी, कौन से हर एक बार आपको लूप इक्वेशंस करने पड़ेगा। और हम जैसे हमने अभी जैसे सॉल्व किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको बहुत बड़े इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। पर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क देखोगे ना तो आपको बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो कैसे, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, तो आप ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर दो यहाँ पे, तो ये सर्किट कैसे बन जाएगा। देखो ये पॉइंट मैंने अगर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया तो ये डायग्राम कैसे दिखेगी, यहाँ से ये पॉइंट आया और एक पॉइंट ऊपर गया, सी वंस अगेन, एक पॉइंट ऊपर गया, ये देखो ऐसे, और यहीं से एक पॉइंट नीचे आया ऐसे, लेटेस्ट एक, और फिर यहाँ से ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे C1, ये है C1, ये है C2, और C2 का एंड और C1 का एंड दोनों के बीच में क्या है, C3 है, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं हम, C3 है ना, यस। और यहाँ से आ रहा है C6 और यहाँ से आ रहा है C5, यहाँ से आ रहा है C6 और यहाँ से आ रहा है C5, और दोनों एक को यहाँ पे इसको कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, यस। और फिर ये दोनों क्या हो रहा है, हाँ, फिर देखो ये वाला एंड है ना, ये C1 और C2 का एक जो टर्मिनल है वो यहाँ पे सीधा कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, C5 और C6 का एंड जो है यहाँ पे, ये दोनों को फिर से ऐसे C4 कनेक्ट हो रहा है ना, हाँ। और फिर C4 का जो C5 C6 को जो कनेक्टेड है कॉमन एंड, उसी को उन्होंने क्या कर लिया है, B कंसिडर कर लिया, यस। तो ये A है, ये B है। तो आपको क्या करना है, पहले ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क आप सॉल्व करो। कौन सा वाला नेटवर्क, ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क आपने अगर सॉल्व कर लिया तो इसका कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसका और रेजिस्टेंस का, ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में तो सिंपल एडिशन करते वो आंसर आपका हो जाएगा। तो बहुत सिंपल इसका आंसर आ जाता है। कैसे, देखो, तो ये कैपेसिटर्स तीनों सभी के वैल्यूज उन्होंने दे चुके ऑलरेडी, C1 इक्वल C2 इक्वल C3 इक्वल C4 इक्वल C5 इक्वल C6 है B, और ये सभी का वैल्यूज कितना है, C फैरेड्स है। कितना वैल्यू है, C फैरेड्स है। तो C फैरेड्स इनका सभी का वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, यस, तो आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है। क्या, C, देखो तो ये बीच वाला भी सभी है ना, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C6 अपॉन C5 है क्या, C अपॉन C विल बी इक्वल्स टू C अपॉन C। इज दिस व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बैलेंस, यस, ये बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क है। तो आपको क्या कंसीडर करना है, C अपॉन C इक्वल्स टू C अपॉन C हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बीच वाला डायग्राम सीधा क्या करना है, निगलेक्ट करना है, क्योंकि व्हीटस्टोन्स नेटवर्क की कंडीशन क्या थी, बीच में वाला सीधा गायब करो। आपको याद है ना, इसको हमने गायब कर लिया। तो सर्किट कैसे हो गया, C प्लस C 2C, ये कितना हुआ, C प्लस C 2C। तो 2C और 2C पैरेलल में हो गए, है कि नहीं। तो 2C और C प्लस C 2C होते क्या, ये क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या होता है, यही डायग्राम देखो मैंने कहा पे कंसीडर किया, ये C है, ये C है, और फिर बाद में ये C है और ये C है। तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये ऐसे टर्मिनल आ गया है, और इसी को मैं कैसे कंसीडर करता हूँ, ऐसे, है ना, और इसी को हो गया, ये होगा हमारा। तो ये C और ये C, ये C है और ये C है। इसका हम कैसे सॉल्व करते थे, C और C सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है, 1/C प्लस 1/C, या दोनों सेम रहेगा तो क्या होता है, सीधा C/2। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप, सीधा C/2। कितना हुआ इसका आंसर, C/2। इसका वैसे आंसर कितना आता है, C/2। तो C/2 क्या होता है, इन पैरेलल सिंपल एडिशन होता है। तो C/2 प्लस C/2 कितना हुआ, C, और ये कॉम्बिनेशन C हो गया पूरा आंसर, यस। तो ये दोनों का मिला के कितना हो गया, C, और ये भी हो गया C और C क्या होता है, यस, दे आर इन पैरेलल, है ना, दैट इज द आंसर। C और C पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है। तो A और बीच में कितना हो गया, C और C 2C। सो फाइनली वी हैव A, B एंड वी हैव 2C। सो A और बीच में कैपेसिटेंस कितना है, 2C फैरेड्स है। कितना है, 2C फैरेड्स। इजंट इट वेरी सिंपल, है ना, यस। तो ये हुआ अपना बाय व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। अब यही प्रॉब्लम 2C ही निकालेंगे हम KCL और KVL यूज करके। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे KCL और KVL यूज करके। तो ये हमने क्यों करना है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। या सो लेट अस टेक दैट क्वेश्चन, यस। ओके, तो स्टूडेंट आपको कंसीडर करना है, तो आपको कुछ एजम्पशंस कंसीडर करेंगे पहले। तो यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है सॉल्व करते वक्त, यहाँ पे
यहाँ पे आपको एक वोल्टेज सोर्स है ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, क्या कंसीडर करना है आपको, केवीएल क्यू कैसे यूज करोगे आप, तो आपको एक वोल्टेज सोर्स यूज करके आपको वोल्टेज निकालने को इजी हो जाएगा। सो एज्यूम दैट देयर इज अ प्लस, देयर इज सम सोर्स वोल्टेज है, यस, एंड देन यू हैव अ सर्किट हियर, यू हैव अ सर्किट, सिंपल सर्किट। तो आप अभी आप क्या एज्यूम करोगे यहाँ पे कि यहाँ से एक ये प्लस वी वोल्ट है और ये 0 वोल्ट्स है, ठीक है। ए और बी को हमने क्या कर रिप्लेस कर दिया, प्लस वी वोल्ट्स है और ये 0 वोल्ट्स है, ठीक है। ये डायग्राम हमने तभी निकाले थे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या करना है, पहले एजम्पशन कि यहाँ से एक चार्ज आया है, वी की वजह से एक चार्ज आया क्यू, कितना आया चार्ज, कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू की वजह से चार्ज आया है क्यू। और हम क्या कंसिडर करेंगे अब, है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर कर लिया है v से निकल रहा है चार्ज कैपिटल Q, तो C1 की तरफ एक चार्ज जा रहा है, उसका वैल्यू है स्मॉल q1, कितना है, स्मॉल q1, है ना, यस, कितना कंसिडर है, q1 कंसिडर है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज जा रहा है, इसका नाम देंगे लेटेस्टिक q2 नाम देंगे इसको, चलेगा, यस, ओके, यस, और यस, तो यहाँ पे मैंने C4 लिखा था, ये सी, हाँ ये हमारा C5 है, ये है C4, तो यहाँ पे एक चार्ज देंगे हम और इसको बोलेंगे Q4, यहाँ पे है, इसके ऊपर है चार्ज Q3, यस, सिमिलरली हैव Q5 एंड Q6, इसके ऊपर चार्ज होगा Q5 और उसके ऊपर चार्ज होगा Q6। अभी आपको क्या करना है, आइसोलेटेड सिस्टम्स देखने हैं और आपको सीधा क्या खोलना है, यहाँ पे चार्ज 0 रहेगा, तो आइसोलेटेड सिस्टम कहाँ कहाँ है ढूंढो, और वहाँ पे चार्ज आपको 0 है वो देखना है। आइसोलेटेड सिस्टम कहाँ कहाँ पे है, आइसोलेटेड सिस्टम कहाँ कहाँ पे है, यस, तो आइसोलेटेड सिस्टम देखो कहाँ पे है, तो ये देखो ये ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम है ना, यस, तो इज इट आइसोलेटेड सिस्टम, ये तो ओपन है ना, ये तो सिर्फ हमने वोल्टेज कंसीडर किया था, ओके, यस, तो यहाँ पे आप क्या कंसीडर करोगे कि दिस इज ए आइसोलेटेड सिस्टम, यस, ओके स्टूडेंट्स, ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना, यस, ओके। सो अगर यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है तो आप इसको आइसोलेटेड सिस्टम इक्वेशन लूप लिख सकते हो, व्हाट इज दैट, Q कैपिटल Q इक्वल्स व्हाट, Q1 प्लस Q2 प्लस Q4, Q1 प्लस Q2 प्लस Q4, ऐसे आप लिख सकते हो। और एक आपको बताना है, और एक आइसोलेटेड सिस्टम, ये देखो, ये तो सिंपल आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, देखो ऐसे, है ना, ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है। देखो एक्चुअली यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, पर आपको क्या कंसीडर करना है, इवन इफ दिस वोल्टेज सोर्स इज देयर, स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग एक्चुअली, पर यहाँ से कुछ चार्ज आएगा, आपको उसको एज्यूम करना है कि दैट इज सम चार्ज, इसीलिए आपने इसको आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लिया, ओके। वैसे तो ये भी ऐसे भी आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है, Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू गोइंग टू बी इक्वल टू 0, तो वो भी हम लिख सकते हैं, देखो ये ऐसे वाला थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम, तो पहले ये आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कौन है, Q2 Q3 और Q5, तो वो भी लिख लेंगे Q2 प्लस Q3 प्लस Q5 विल बी इक्वल्स टू 0, विल बी इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स हमने अभी चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव दिया है क्या वैल्यू, तो वो पहले हम दे देंगे, इसका मतलब आपने को क्या होगा कि पोलैरिटी का टेंशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो देखो ये प्लस Q1 है, प्लस Q2 और प्लस Q4, तीनों प्लस में इक्वल्स टू, यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा है, प्लस Q आ रहा है ना, यहाँ से, ओके, हमने सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन किया, यहाँ से चार्ज आया तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या ओके, अब और क्या कंसीडर करोगे यहाँ पे, ये माइनस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q5 हो गए, ये Q2 की वैल्यू माइनस है तो इसको हम माइनस कंसीडर करेंगे, इतना क्लियर है आपको, यस, ओके। सो वी हैव रिटन लाइक दिस, व्हाट इज दैट, माइनस Q2 प्लस Q5 प्लस Q3, माइनस Q2 प्लस Q5 प्लस Q3, यस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 करेक्ट है,
Similarly, charge on Q is equal to the charge coming from plates Q4, Q5 and Q6. Q4 यहाँ पे Q5 and Q6 है ना यार. वैसे हम लोग ने मिलकर यहाँ पे क्या कंसिडर किया, ये चार्ज यहाँ पे जा रहा है ना. ओके, सो हमको जैसे हमने Q चार्ज आया तो Q1 और Q2 और Q4 को गया, वैसे ही Q4, Q5, Q6 फिर से ही चार्ज Q बना रहे ना, तो उसको हम फिर से ये भी कंसिडर कर सकते हैं दैट कैपिटल Q इक्वल्स व्हाट, Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, ये भी हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं. यस, ओके. Q3 प्लस Q5 प्लस Q2 ये हमने लिख लिया, करेक्ट है ना. हाँ, ये भी नीचे वाला भी लूप हम लिख सकते हैं, ये भी हमने लिख लिया. तो ये 3 लूप्स हमने निकाले और तीनों लूप्स के तीनों इक्वेशन हमने लिख लिए. तो ये हमारे 3 लूप लॉज है, ये हमारे 3 क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम यानी चार्ज कंजर्वेशन के लॉ है. अभी हमको लूप लॉ भी लिखना है, अभी हमको क्या लिखना है, लूप लॉ भी लिखना है. तो लूप लॉ भी लिखेंगे हम. देखो कौन से लूप ले सकते हो आप, दिखाओ. पहले हम नाम देंगे सर्किट को कुछ. देखो ये पहला लूप ले लो, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, लूप 1, लूप 2 और लूप 3. नाउ आई एम रीड्रॉइंग द सर्किट डायग्राम. मेरे को थोड़ा और एक बार में निकाल दे रहा हूँ डायग्राम. तो ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है और ये तीसरा लूप है. ये तीनों लूप्स के आपको लूप इक्वेशंस यहाँ पे लिखने. सी दिस प्रोसेस हमारा 2C आंसर बहुत जल्दी आ चुका था, है ना. यही क्वेश्चन के लिए 2C आंसर आ चुका था. यही क्वेश्चन हम लूप लॉस केवीएल की करंट कंजर्वेशन लॉस और लूप लॉस के साथ करेंगे. व्हाट इज दिस, ये हमने क्या लिखे है, तीनों आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढ के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया. तो दिस इज योर KCL. व्हाट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ. किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि करंट मतलब क्या, ये चार्ज है ना एक्चुअली. तो KCL बोलते हैं हम इसको. सो KCL हमने यूज किया यहाँ पे. और आइसोलेटेड सिस्टम्स के हमने चार्ज कंजर्वेशन के इक्वेशंस लिख लिए. अभी आपको क्या करना है, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ या लूप लॉ से इक्वेशंस, 3 लूप लॉज आपको लिखना है. तो ये बड़ा लूप ले लो, एक छोटा लूप ले लो, एक छोटा ले लो, तीनों लूप ले लो. देखो आपको पहला लूप ले लो आप, ये वाला सबसे बड़ा. तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसके 3 इक्वेशंस क्या आ जाएंगे. ये इक्वेशन आपने ले लिया. हाँ, तो यहाँ पे क्या है, देखो प्लस टू माइनस क्या हो रहा है, प्लस टू माइनस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना. प्लस टू माइनस डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कम होना, है ना. यस, तो क्या बोलेंगे, वी कैन राइट इट एज माइनस Q1 अपॉन C1, है ना. सभी के कैपेसिटेंस C ही दिए उन्होंने, सभी की कैपेसिटेंस C फैरेड C है. लेट अस पुट इट एज C. और यहाँ पे देखो -2 प्लस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो प्लस Q3 अपॉन C. और फिर से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, -2 प्लस इंक्रीज, सो प्लस Q2 अपॉन C विल बी इक्वल्स टू व्हाट. फिर से यहीं पे आ गया, तो ये लूप में आपको आंसर आ रहा है 0. यस, इसको आप सॉल्व कर लिए, तो आपको क्या आ रहा है इक्वेशन, इसको आपने सॉल्व किया तो इसी मल्टीप्लाई पे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. Q1 यहाँ पे, Q1 विल बी इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3. ठीक है, इज इट योर फर्स्ट इक्वेशन. ये इक्वेशन आ रहा है आपका. हाँ, तो ये इक्वेशन आपका आ गया है. ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, लेट अस मल्टीप्लाई बोथ, लेट अस ऐड Q2 टू बोथ साइड्स, एडिंग Q2 टू बोथ साइड्स, ऐड Q2 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो Q2 का हमने बोथ साइड्स ऐड कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल्स टू 2Q2 प्लस Q3. दिस इज योर इक्वेशन 1. दिस इज योर इक्वेशन 1. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन लूप 2 पे जाते हैं. इक्वेशन लूप 2 कौन सा है हमारा, है ना, ये वाला है, ये वाला. तो इसको हमें सॉल्व करना है. यस, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाओगे, देखो यहाँ से ऐसे जाओगे तो प्लस टू माइनस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना. प्लस टू माइनस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, Q2 माइनस Q2 बाय C, है ना. वोल्टेज इज व्हाट, हम ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करें ना, वो V इक्वल्स टू Q अपॉन C. हम Q अपॉन C के टर्म्स को सभी को ऐड कर रहे हैं. आई बात समझ में. और उससे हम इक्वेशंस बना के रैंडमली फिर से हम सॉल्व करके हम CAB का कैपेसिटेंस निकालेंगे. ओके, या सो देखो, फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इक्वेशन लगा रहे हैं. तो Q2 अपॉन C, यहाँ पे प्लस टू माइनस फिर से डिक्रीज होगा, माइनस Q5 अपॉन C.
और यहाँ से -2 प्लस इंक्रीज होगा, सो प्लस Q4 अपॉन C इज इक्वल्स टू व्हाट इक्वल्स टू 0। इसको हमने फिर से सॉल्व कर लिया, तो ये होगा Q4 इक्वल्स Q2 प्लस Q5। इक्वेशन हम बोलते हैं इक्वेशन 2 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इक्वेशन 2। Q4 इक्वल्स Q2 प्लस Q5। ओके, वैसे हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं, ये वाला। यहाँ पे इक्वेशन पुट करो, प्लस टू माइनस डिक्रीजिंग, सो माइनस Q3 माइनस Q3 अपॉन C, यहाँ पे Q6 अपॉन C, और फिर -2 प्लस इंक्रीजिंग ना, यस, तो प्लस Q5 अपॉन व्हाट C विल बी इक्वल्स टू 0। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये भी आता है क्या, Q5 इक्वल्स Q3 प्लस Q6, Q5 और Q3 प्लस Q6, तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। तो आपको क्या करना है फिर से, Q3 इक्वल्स Q3 इक्वल्स, या करेक्ट, Q5 इक्वल्स Q3 प्लस Q6। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, यस, सो यू हैव ऑलरेडी हैव Q5 इक्वल्स Q3 प्लस Q6 है ना, तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करने के लिए Q5 को Q6 से ऐड करना है दोनों साइड्स। तो एडिंग Q6 टू बोथ द साइड्स, एडिंग Q, जैसे यहाँ पे Q2 ऐड किया, यहाँ पे ऐड करो Q6, एडिंग Q6 टू बोथ साइड्स। If you add Q6 to both sides, it will become Q5 plus Q6 will be equals to what? 2Q6 plus Q3, 2Q6 plus Q3। देखा बात समझ में आ रहा है? तो ये इसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। ऐसे क्यों ऐड किया, ये आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, यस। तो हमको 3 इक्वेशंस मिल चुके हैं, यस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन Q3 प्लस Q5 इक्वल्स Q2, ये जो इक्वेशन है इसको हम देख लिया हमने, इक्वेशन है ना, वन इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 1 कहाँ पे है, या 1 Q1 प्लस Q2 इक्वल्स Q5 प्लस Q6, Q5 प्लस Q6। अब इक्वेशंस गिव, ओके, या अभी ये सभी इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना है। पहले जो रेड इक्वेशंस है ना, इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो इसको हमने सॉल्व करने के बाद यहाँ पे पुट करने के लिए इजी होता है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या होता है। देखो ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर करो, यहाँ पे कॉमन क्या है, Q4 कॉमन है ना, Q4 यहाँ पे कॉमन है, और ये भी यहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब क्या, Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल्स टू Q5 प्लस Q6 ना। ये दोनों को आपने अगर देखा तो हम क्या करते हैं, Q2 प्लस Q1 प्लस Q2, इसको हम क्या लिखते हैं, Q5 प्लस Q6 ऐसे लिखते हैं। Q1 प्लस Q2 हम क्या लिखते हैं, Q5 प्लस Q6, ओके, यस। तो अब हमको क्या करना है, देखो कंपेयर करेंगे हम, यस, Q3 प्लस Q5 इक्वल्स टू माइनस Q2, वो भी इक्वेशन है। इक्वेशन है, सो Q3 5 प्लस Q3 इक्वल्स टू इक्वेशन है। 4 बोलते हैं, ओके। इक्वेशन 4 और 5 भी हमारे पास है, ओके, यस। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, अभी आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो इक्वेशंस, हाँ, जो अभी की इक्वेशंस है ना, ये वाला इक्वेशन 5, इक्वेशन 5, इक्वेशन 3, इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, 5, 3 एंड 2। देखो ये है 5, ये है 3 और ये है 2। ये 3 इक्वेशंस को देखो, आप क्या बता सकते हो, आप व्हाट यू कैन से फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशंस, Q4 और ये। तो देखो Q5 एंड Q2 है ना, Q5 प्लस Q3 है यहाँ पे,
इक्वेशन 1 मतलब है ये 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 लेट अस कंसीडर इक्वेशन 4 है हमारे पास। इक्वेशन 4 इक्वेशन 2 यानी कौन सा, पहला वाला, यस दैट इज देयर, दिस वन। एंड देन यू हैव इक्वेशन 4, so कौन सा, yes, so you just see these three equations, q1 plus q2, ये q1 plus q2, so what you can consider from this, q1 plus q2 is equals to what, ये तीनों को आपको कंपेयर करना है। देखो अब ये हम रब कर दें क्योंकि ये इसी की वजह से ये दोनों आ चुके हैं ना, तो इसको हम रब कर ले, चलेगा, यस। हमको थोड़ा देर लग रही है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्योंकि हम थोड़ा अलग मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, यस। हाँ, so this is a very lengthy process but just now you will understand it why we have done so। ठीक है, देखो हाँ, ये हम हमारे पास ये ऑलरेडी इक्वेशंस है ना, तो यहाँ पे हमने इसको कंपेयर करना है q1 प्लस q2, और यहाँ पे ऑलरेडी q1 प्लस q2 है, तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी q1 प्लस q2 है, हमने इधर पर्पसली ऐड q2 किया था क्योंकि q1 प्लस q2 की इक्वेशन हमको पता चलेंगे। ठीक है, q1 प्लस q2 के दोनों इक्वेशंस पता चलेंगे, तो राइट हैंड साइड हम इक्वेट करेंगे q5 प्लस q6, q5 प्लस q6 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2q3 प्लस 2q2, 2q2 प्लस q3, है ना, यस। तो और q5 प्लस q6, q5 प्लस q6, q5 प्लस q6 इज ऑलरेडी इक्वल्स टू व्हाट, 2q6 प्लस q3, 2q6 प्लस q3, है कि नहीं। ये दोनों को हमको कंसीडर किया है, तो हमको क्या पता चल रहा है कि q2 शुड बी इक्वल्स टू q6, है ना, ये दोनों अकल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है q3 इज इक्वल्स टू q3, है ना, इसका मतलब q2 शुड बी इक्वल्स टू q6। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड हियर। ये आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है। q1 q2 इफ q2 इक्वल्स टू q6, अब इफ q2 इक्वल्स टू q6 हम अब कहाँ पे कंसीडर करेंगे, यस, q2 इक्वल्स टू q6 हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, देखो, हाँ, ओके, q2 इक्वल्स q6 हमने कंसीडर कर लिया, ओके, यस। तो अब हम क्या करेंगे, इफ q2 इक्वल्स q6, हाँ, अगर हमने q2 इक्वल्स q6 यहाँ पे कंसीडर करें इक्वेशन 4 में, q2 इक्वल्स q6 दोनों तो सेम है ना, तो यहाँ पे दोनों को कैंसिल कर लिया हमने, तो क्या बनता है, q1 इक्वल्स टू q5 बन रहा है, q1 इक्वल्स q5 बन रहा है ना, यस, q1 इक्वल्स q5 बन रहा है ना आपको, है ना, यस। सो यू हैव हियर q1 इक्वल्स q5, तो और क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, q6, q1 इक्वल्स q5, तो q1, ओके, सो q1 इक्वल्स q5, और एक इक्वेशन कौन सा कंसीडर करेंगे हम, ये हमको पता चला, और क्या पता चला, q6 के बारे में क्या पता चल सकता है अपने को, q6 के बारे में, सो यू हैव q5 प्लस q5, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं 2q5, है ना, क्योंकि q6 इज नथिंग बट q1 प्लस q2, अब देखो q5 की जगह मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ये इक्वेशन को देखो, q5 की जगह मैं लिखूंगा q1 और q6 की जगह मैं लिखूंगा q2, देन यू हैव 2q6 प्लस q3, है ना, यस। और ये देखो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो q2 इक्वल्स टू q6 हो रहा है ना, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया, ओके, सो नो नीड ऑफ दैट, ओके, हाँ, यही दोनों इक्वेशंस हमारे आ रहे हैं, ओके, दिस टू आर इनफ फॉर अस, ये हमको दोनों, ये दोनों इक्वेशन हमको पता चले, है ना, क्या। अभी देखो q2 माइनस q1, हाँ, ये जो इक्वेशन है हमारा ये, हाँ, तो यहाँ पे हमने q2 इक्वल्स टू q6 अगर लिख लिया, यहाँ पे q2 इक्वल्स q6 हमने लिख लिया, तो व्हाट यू कैन राइट इट इज, यहाँ पे q2 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे,
Q1 इक्वल्स टू Q5 लिखेंगे। ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन को हम Q2 की जगह Q6 लिखेंगे। ओके, सो वी हैव Q6 इक्वल्स टू Q5 प्लस Q3। यस, Q6, ओके, Q6 इक्वल्स, और Q5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? लेट अस कीप दिस एज, ये Q2 की जगह Q2 ही रखने दो, और Q5 की जगह मैं लिखता हूँ Q1। ओके, सो आई राइट इट एज लाइक दिस, Q2, और ये है Q5 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? Q1। ओके, यस। ओके, so if you just see this equation, what happens is that Q1 minus Q2 minus Q1, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, Q2 minus Q1 equals to what? Q3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। yes, so we have written this also, एक भी इक्वेशन हमने लिख लिया है। ओके, यस। अभी देखो हमारे हमको क्या वैल्यू आ रहा है, Q2 minus Q1 equals to Q3, है ना? Q2 minus Q1 और ये Q1 plus Q2 है ना? ये दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, ये दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लिया, तो क्या होता है? Q2 Q1 कैंसिल होता है, और 2Q2 will be equals to what? Q3 plus Q5 plus Q6, है ना? यस, ये देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। ओके, सो व्हाट यू गेट फाइनली, यू गेट दैट Q2 Q1, हाँ देखो, और Q1 इक्वल्स टू क्या है, और एक चीज बात समझ में आ रही है, Q2 minus Q1 इक्वल्स टू Q3, है ना? हाँ, सो इफ यू जस्ट सी हियर, Q2 minus Q1 is Q3, and comparing here Q1 plus Q2, ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तो वी हैव 2Q2 equals to Q5 plus, yes, so we'll see here, देखो ये पार्ट मैं रब कर रहा अभी डायग्राम का, we'll have some more working on it। yes, इक्वेशन बहुत बड़ा बन रहा है, डोंट वरी, विल सॉल्व इट आउट। Q2 minus Q1 इक्वल्स टू Q3, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 5 है, इक्वेशन इसको 6 बोल रहा हूँ, इक्वेशन 6 और 5 को हम इक्वेशन 6 नहीं, इक्वेशन 6 और 4, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 4, ये दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है? सो वी हैव इक्वेशन 6 एंड 4, वी हैव 2Q2, और ये दोनों साइड्स वहाँ पे ऐड करेंगे, विल बी इक्वल्स टू Q3 प्लस Q5 प्लस Q6, है ना? यस, तो ये दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लिया, तो Q2 इज ऑलरेडी इक्वल्स टू Q5 प्लस Q3, है ना? Q2 इज ऑलरेडी इक्वल्स टू Q5 प्लस Q3। इसको अगर देखा जाए तो Q5 plus Q3 is coming equal to Q6 हो रहा है ना? Q5 और 3 कैंसिल हो जाए, Q5 plus Q3 equals Q6, and Q6 equals to Q5 plus प्लस Q3। हाँ, ये बात समझ में आई। और Q1 यहाँ पे वैल्यूज हमने सब सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है? Q2 की जगह हमने Q6 की जगह Q2 लिखा है, और Q5 की जगह मैंने Q1 लिखा है। ओके, Q5 की जगह मैंने क्या लिखा है? Q1 लिखा है। ओके, ओके, तो ये दोनों, ये इक्वेशन आपने अगर कंसिडर कर लिया, है ना? ये इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिया, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? Q1 प्लस Q3 इक्वल्स टू व्हाट? Q2, है ना? और यही पे, ये तो यही पे था। ओके, सो वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग न्यू। देखते हैं क्या सॉल्व होता है। 6
Q2 minus Q1 is equals to Q3 और इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 यानी ये बात करें। हाँ देखो ये दो इक्वेशंस देखो स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशंस देखो, ये दो इक्वेशंस आप देखोगे तो ये दो इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 6, 1 और 6 को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे Q1 और Q1 है ना ऑलरेडी, तो Q2 प्लस Q2 कितना हो गया 2Q2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 2Q2 प्लस Q3, 2Q2 प्लस 2Q3 है। इसका मतलब क्या, Q3 इज इक्वल्स टू 0। ये बात में समझ में आ गई आपको, Q3 is equals to what 0. Okay, so we have got a big clue, Q3 is equals to 0. If Q3 is equals to 0 na students, so Q1 will be equals to Q2, Q1 will be equals to Q2. If Q1 will be equals to Q2, then Q2 is already equals to Q6, so this will be equals to Q6, and Q1 is also equals to Q5, so this will be equals to Q5. wow, तो हमने बहुत सारे यहाँ पे अपने को बातें समझ में आ गई। तो बचा क्या 1 2 3 4 5 और 6, Q4 बचा है। तो Q4 के बारे में कौन सा इक्वेशन है क्या आपके पास, Q4 के बारे में ये नहीं है, ये नहीं है, ये यहाँ पे है ना। तो Q2 और Q5 दोनों सेम है, तो Q4 को हम क्या लिख सकते हैं, Q4 को हम क्या लिख सकते हैं 2Q1 ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2Q1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। या Q4 अपॉन 2 और Q1 इज इक्वल्स टू दिस ना, तो ये 2 मैंने अगर यहाँ पे कंसिडर कर लिया तो Q1 इज इक्वल्स टू Q4/2, इसका मतलब यहाँ यहीं पर मैं Q4/2 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हमारे दो इक्वेशंस मेन हमको पता चले। ओके यस, अभी हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग में इक्वेशन था है ना, ये बड़ा इक्वेशन था ऐसे वाला। ओके यस, ये बड़ा इक्वेशन था ऐसे वाला। सो V इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे चार्ज C4 था और चार्ज Q4 था, है ना, चार्ज Q4 था। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट यू कैन राइट इट एज, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V विल बी इक्वल्स टू चार्ज Q4 अपन इसका कैपेसिटेंस C4, इसका कैपेसिटेंस C4। तो देखो Q4 की जगह हमने क्या लिखा है, हाँ Q4 की जगह Q4 ये है, C4 की जगह हम C लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं C लिख सकते हैं, है ना। यस, तो व्हाट इज Q4, हाँ अगर ये पहले वाला इक्वेशन जो हमने लिखा था सबसे बड़ा वाला, कहाँ पे गया वो, हाँ यहाँ पे जो इक्वेशन हमने लिखा था याद है, हाँ अगर वो इक्वेशन हमने देख लिया, yes, what is Q4, तो हमने जो पहले इक्वेशन लिखा था याद है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन जो पूरा सी है, ये इधर तक आपको समझ में आ गया ना। तो ये पार्ट मैं रब कर रहा हूँ जो आपको अब जो आपने स्टडी किया वो, ठीक है। तो शुड आई रब दिस पार्ट, यस, आपको बहुत सारा पार्ट समझ में आ चुका है, ये पार्ट रब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन। सो शुरू में इक्वेशन हमने एक लिखा था, वो आपके नोटबुक में है, वो लिख लो, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 था वो, है ना, इट वाज Q1 प्लस Q2 प्लस सॉरी Q4। अगर आपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया Q1 Q2 के वैल्यूज, इसको भी कंसिडर कर लिया 2Q1 और Q4 को कंसिडर कर लिया Q4/2, Q4 को हमने कंसिडर कर लिया फिर से 2Q1, है ना। Q4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2Q1 कंसिडर कर लिया, Q इक्वल्स टू Q/4 इक्वल्स टू Q1, है ना, या और Q1 की जगह फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ Q4/4, या फिर इसको लिख सकता हूँ Q4/2, है ना। देखो क्या किया यहाँ पे, ये आपको बात समझ में आ गई है ना। ये कॉमन 4 मैंने यहाँ पे लिखा, और Q1 इज व्हाट इज Q1 देखो यहाँ पे क्या है, Q1 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंड Q1 इक्वल्स टू Q4/2, तो दोनों को पुट करो, Q/4 इक्वल्स टू Q4/2, so we have, हाँ okay, so we can write it as Q/2 equals to Q4, Q/2 equals to what, Q4 है। और ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे, इसको कंपेयर करोगे तो व्हाट डू यू हैव फाइनली, दैट V इक्वल्स टू Q4/C4, Q4 की वैल्यू क्या लिखोगे
Q upon 2 और C4 की जगह क्या लिखोगे C. So we have V equals to Q upon 2C. V equals to Q upon 2C. इसको अगर कंपेयर करोगे सिर्फ इतने इक्वेशन को तो आपको क्या आ रहा है यहाँ पे. वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहता है अपने का. ये अगर तो कैपेसिटर है, ये अगर वोल्टेज सोर्स है V एंड वी हैव अ कैपेसिटेंस हियर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो. इसका C है ना, और Q चार्ज है, तो व्हाट वी कैन राइट इट एज व्हाट V अपॉन Q. ये Q इक्वल्स टू CV लिखते हैं ना हम. व्हाट यू राइट Q इक्वल्स CV लिख सकते हैं. तो C को क्या लिख सकते हैं हम. C कैन बी रिटन एज व्हाट. C कैन बी रिटन एज Q अपॉन V ना. Q अपॉन V लिख सकते हैं हम. यस ओके. या फिर हाँ, तो यहाँ पे हमने अगर कंसिडर कर लिया C इक्वल्स टू Q बाई V, तो ये C अगर यहाँ पे जाएगा और V यहाँ पे आ जाएगा, है ना. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं. 2C इक्वल्स Q बाई V. तो जो C रहता है वो क्या रहता है, पूरा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहता है. तो यहाँ पे कितना आ रहा है, C नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 2C आ रहा है. तो 2C क्या रहेगा, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस. तो पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस 2C है, जो हमने ऑलरेडी व्हीटस्टोन्स नेटवर्क से सॉल्व किया था. ओके स्टूडेंट्स. सो ये देखो बहुत सारा है, इसको सीक्वेंसली लिख लो. बहुत बड़ा इक्वेशन है, ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है, फिर भी हमने ऐसे सॉल्व किया. क्यों, क्योंकि जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट वी कैन कम थ्रू दीज इक्वेशंस बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली. यस